Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of business studies. Today in this lecture, I am going to cover some more topics of chapter 4, that is planning. In my last lecture, I have started chapter 4, planning, and I have explained you planning, characteristics of planning and importance of planning. Now in this lecture, the topic which I am covering are limitations of planning and steps involved in planning process. See beta, limitations of planning. The limitations of planning are furnished below. Number 1, limitations are the drawbacks of the planning process. Firstly बेटा limitations आप समझ लीजिए, अगर किसी की advantage है तो there are some drawbacks also. तो limitations are the drawbacks of planning process. The limitations of planning are as follows. Planning leads to rigidity. Rigidity का मतलब कि प्लानिंग एक कांस्टेंट प्रोसेस है. आप उसको डिसाइड कर लेते हैं इन एडवांस फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और अगर उसमें कहीं भी कोई भी चेंजेस आते हैं, इट मीन्स प्लानिंग बिकम्स इनइफेक्टिव. द प्लान्स आर रिजिड इन नेचर एंड हैव टू बी कंपाइल्ड विद थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. Such rigidity of plans may be internal as well as external. Internal rigidity relates to plan, policies, programs, rules and methods, and external rigidity relates to political, industrial, technological, legal and economical changes. बेटा plans are made for future course of action और 200 plans rigid होते हैं. Internal rigidity में plans जो होते हैं policies, programs, rules and methods पहले से decide हो जाते हैं जिसको हमें follow करना है in the future course of action. External rigidity में जो changes आते हैं through political, industrial, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस, दैट आर नोन एज एक्सटर्नल रिजिडिटी. इनमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं बिजनेस में तो दिस प्लान बिकम्स इनइफेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैज़ 5 branches in a city. Whatever the top management of the hospital decides, the health of the branch of the hospital and their subordinates have to follow. Though on occasions they know they could have done better on their own, बट द प्लान लेड आउट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू देयर अप्रोच. रिजिडिटी मतलब जो सुपीरियर डिसाइड कर चुके हैं उसी को आपके सबॉर्डिनेट्स को फॉलो करना है. अगर वो कोई भी चेंजेस लेकर आते हैं इन एनी ऑफ द प्लान, देन इट बिकम्स इनइफेक्टिव. तो दैट इज रिजिडिटी. नाउ सी सेकेंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट. डायनेमिक मतलब जहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं. प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है. बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ वेरी डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूसली चेंजेस टेक्स प्लेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट. इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस, और प्लान में फेल इफ़ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट. तो प्लानिंग क्या होती है? द इन्वायरमेंट इन विच अ बिजनेस सर्वाइव इज़ डायनेमिक, और वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है. सो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम फोरकास्ट कर लें अबाउट द ट्रेंड्स, taste of customers, natural calamity, competitors' policy and effects of the changes in the different components of the environment. The organization has to constantly adapt itself to change because it is difficult to forecast the future changes with absolute accuracy. ठीक है, तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ वो फ्यूचर चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं. तो द डायनेमिक इन्वायरमेंट में समटाइम्स लीड टू फेलियर्स ऑफ प्लान. और जब ये डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब चेंजेस आते हैं इन इन्वायरमेंट पॉलिसी तो इट लीड्स टू फेलियर इन प्लान्स. सी द एग्जाम्पल. Nestle, a very successful producer, was very proactive in deciding strategies for Maggi noodles. Maggi noodles were in a lot of demand, but they were off the shelf due to political and legal dimensions. This was due to the high content of lead in Maggi noodles. ठीक है, मैगी नूडल्स के लिए काफ़ी चेंजेस प्रोड्यूसर ने एक्सेप्ट करे. प्रोएक्टिव था वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आ गई पॉलिटिकल एंड लीगल की वजह से वो हाई कंटेंट ऑफ डिमांड मैगी की डाउन होने लगी. तो दैट इज़ द चेंजेस. इफ़ इट अराइजेज इन फ्यूचर देन अ बिजनेस हैव टू अडॉप्ट दैट चेंजेस. लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है, हम उसको फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं. इट मीन्स प्लानिंग फेल हो जाता है एज पर द एक्शन. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. Planning reduces creativity. Planning is mostly done by the top management and other members. Like middle and lower level of management have to follow these plans. They cannot deviate or change the plans made by their seniors. Planning क्या होता है आपका? प्लानिंग जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू करा जाता है, और जो बॉटम और मिडिल लेवल के पर्सन है उन्हें ये सारे प्लान्स को फॉलो करना होता है. और अगर कोई भी चेंजेस वो अपने आप लेकर आते हैं इन दैट प्लान, इट मीन्स प्लानिंग बिकम इनइफेक्टिव. Under such circumstances, employees become orders following machine and don't involve creative thinking from the side. और जब ये लगातार प्लान्स के एक और टॉप लेवल के डिसीजंस को ही फॉलो करते हैं एम्प्लॉयज़, तो वो ऑर्डर
फॉलोइंग मशीन बन जाते हैं और वो क्रिएटिव नहीं होते अपनी तरफ से। और इन सारी रिजिडिटी की वजह से जो टैलेंटेड पर्सन होते हैं बिजनेस में, उनकी क्रिएटिविटी क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है। For example, the need for a branch of a renowned shoe manufacturing company sees a lot of scope in customized shoes. The top management is not interested in this idea as the company manufactures standardized shoes. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर रिनाउंड कंपनीज़ ने देखा कि आपके जो है स्कोप है कस्टमाइज शूट के लिए, लेकिन कंपनी के टॉप लेवल ने फॉलो नहीं करा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है स्टैंडर्ड शूज़ ही बनाएंगे। इट मीन्स जो भी आपके मिडिल या बॉटम लेवल के पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, वो सब टॉप लेवल अगर फॉलो नहीं कराता है तो इट मीन्स इट बिकम्स इनइफेक्टिव। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, दैट इज़ द फोर्थ ड्रॉबैक ऑफ प्लानिंग। formulation of plan can be too much costly because there is a lot of time and money involved. प्लानिंग बनाते टाइम वी नीड लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो सम कॉस्ट आर इंसिडेंटल इन नेचर लाइक एक्सपेंसेस ऑन बोर्ड रूम मीटिंग्स, डिस्कशंस विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स एंड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान। तो ये सब क्या होते हैं, इंसिडेंटल कॉस्ट होते हैं। तो चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन में ऑल्सो इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ टाइम। तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग process as well as planning involves huge cost also. Sometimes cost incurred may not justify the benefits derived from the plans and it may leave a harmful effect on the enterprise. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉस्ट बढ़ जाता है और वो प्लान के अकॉर्डिंगली जो है कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स इट विल क्रिएट हार्मफुल इफेक्ट ऑन द enterprise. For example, companies like IBM spend a lot of research. Many world-class level gives their advice to this company and change their fee. However, without so much of painstaking, such a huge कॉस्ट, मतलब सब कंपनीज IBM में उसने बहुत सारे रिसर्च पे लगाया, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनीज आ गई जिन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करा। तो इट मीन्स जो भी उन्होंने सोचा था उस अकॉर्डिंगली उनका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो दैट इज़ प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, कॉस्ट बहुत लगी बट प्लान इज़ नॉट सक्सेसफुल। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बेटा, और फ्यूचर आपका अनसर्टेन है। तो द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। प्लान बिकम्स मीनिंगलेस इफ इट इज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। और प्लान आपने बहुत अच्छा बना लिया लेकिन उस पर एक्शन नहीं करा, इट मीन्स प्लान बिकम्स meaningless. Managers have a tendency to rely on previously tried and tested successful plans. So it is not necessary that a successful plan in the past will bring success in the future. ठीक है, तो प्लानिंग जो है गारंटी नहीं है सक्सेस की। हो सकता है कि जो लास्ट ईयर प्लान्स आपने अडॉप्ट करें मे बी वो इस ईयर आपके सक्सेसफुल ना रहें। तो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी चेंजेस देखने पड़ते हैं एज पर द बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन अ पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द टॉप मैनेजमेंट वेरी मेटिकुलरली चार्ट आउट द ग्रेट प्लान. The whole company worked out on the plan in such a focused manner. However, with the entrance of a competitor with better paint quality, the whole plan failed. ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है, दीज आर द चेंजेस। अगर कोई और कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में चेंज लेकर आ रहा है तो प्लानिंग बिकम्स इनइफेक्टिव। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, प्लानिंग प्रोसेस, दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस. एज प्लानिंग इज एन एक्टिविटी देयर आर सर्टेन रीजनेबल मेजर्स फॉर एवरी मैनेजर टू फॉलो. ये प्लानिंग जो है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस क्या होते हैं, देयर आर सीरीज ऑफ एक्शन इन विच प्लान्स टू बी रन. तो दीज आर नोन एज स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस. और फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. दिस इज द प्राइमरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, what an organization want to achieve. The planning process begins with the setting up of objective, and objectives are the end result which the management want to achieve by that operation. Objectives are the targets of the business. Planning सबसे first step planning का क्या है, to maintain the target of the business, जिस पे employee को work करना है, जिस पे organization को work करना है, which the organization have to achieve. So that is the first step of planning process, is to decide the target of the business. Now see number 2. Developing planning premises. As per the organization target, planning premises are derived. Planning premises क्या होता है आपका, planning is essentially focused on the future and there are certain events which are expected to affect the policy formulation. Such events are external in nature and affect the planning adversely if ignored. See बेटा,
प्लानिंग क्या होता है आपका? प्लानिंग को जो है हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए करते हैं और उसके लिए हमें बहुत सारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस को भी देखने होते हैं. तो देयर अंडरस्टैंडिंग एंड फेयर असेसमेंट आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग. तो सच इवेंट्स आर द एजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्लान्स आर ड्रॉन एंड आर नोन एज प्लानिंग प्रेमिसेस. प्लानिंग प्रेमिसेस क्या होते हैं? आपके एजम्पशंस हैं जिनके बेसिस पर प्लान बनाए जाते हैं. दीज आर द एजम्पशंस फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड विच आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द प्लान्स फॉर द बिजनेस. For example, the mobile phone company has set that objective of 2000 unit sale on the basis of forecast done on the premises of favorable government policy toward digitalization of transaction. ठीक है, 2 लाख फोन्स यूनिट सेल करने का बना था क्योंकि उनको ये फोकास्ट था कि डिजिटलाइजेशन के साथ प्लानिंग प्रोसेस में भी कई सारे चेंजेस आ सकते हैं. नंबर 3, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द वर्क. अल्टरनेटिव मतलब डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द टास्क. वन ऑब्जेक्टिव्स आर सेट, assumptions are made, then the next step is to act upon them. और जब तक हम जो भी हम प्लानिंग बनाते हैं उस पर हम वर्क नहीं करेंगे तो प्लानिंग विल बी इनइफेक्टिव. तो आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव द मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. और ये अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? डिफरेंट एग्जम्पशंस होते हैं जो हमारे टारगेट को अचीव कराते हैं. The mobile company has many alternatives like reducing price, increasing advertising and promotions after sales services. तो ये alternatives में से कोई बेस्ट अल्टरनेटिव कंपनी अडॉप्ट करती है ताकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाए. Now see the fourth, evaluating alternative course of action. In this step, the positive and negative aspects of each alternative need to be evaluated in the light of objective to be achieved. Every alternative is evaluated in terms of lower cost, lower risk and higher return within the planning premises and within the availability of capital. आपने थर्ड स्टेप में डिसाइड कर लिया अल्टरनेटिव्स को और उन अल्टरनेटिव्स में से इवेल्युएट करा उसको कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है. उन सारे अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं? डिफरेंट वेज होते हैं. सारे डिफरेंट वेज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स फाइंड आउट करा और ये देखा कि क्या चीज़ अचीव हो सकती है. हर एक अल्टरनेटिव को अचीव देखा और उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करा कि विच विल बी द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉर्म. For example, the mobile phone company will evaluate all the alternatives and check its pros and cons. ठीक है, तो that is evaluating all the alternatives and the next step is selecting one of the best alternative. Selecting one of the best alternative means the best plan which is the most profitable plan and with minimum negative effect is adopted and implemented. देखो every business want maximum output at minimum cost. तो उसमें से जितने भी alternatives हमने select करे थे, फाइंड आउट करे थे, उन अल्टरनेटिव्स में से पहले हमने उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट निकाल लिए और फिर नेक्स्ट स्टेप में वी सेलेक्ट द बेस्ट मेथड जिससे हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो. इन सच केसेस द मैनेजर एक्सपीरियंस एंड जजमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. और बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना दैट इज़ द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस. तो उनको फाइंड आउट करना दैट इज़ द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस. मोबाइल फ़ोन कंपनी सेलेक्ट्स मोर टीवी एडवर्टीजमेंट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग विद ग्रेट आफ्टर सेल सर्विसेज. कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं आपके, उनमें से मोबाइल कंपनीज ने चूज़ कर लिया कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, एडवर्टीजमेंट अच्छा करेगी सो दैट देयर कंपनी विल ग्रो. नेक्स्ट सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. This is the step where other managerial functions comes into the picture. This step is concerned with doing what is required. ये स्टेप वो है जिसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान को और जिससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन. इन दिस स्टेप मैनेजर्स कम्युनिकेट द प्लान टू द एम्प्लॉयज़ क्लियरली टू कन्वर्ट द प्लान इनटू एक्शन. जब आपका सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट हो जाता है तो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है कि ये प्लान हमने सिलेक्ट करा है, इसमें हमें काम करना है ताकि वो प्लान एक्शन में आ सके. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग द रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेजिंग ऑफ मशीनरी. एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन दैट. For example, mobile phone company hires salesmen on a large scale, creates TV advertisement and starts online marketing activities and set up service workshop. बेटा whatever plan you are making, जब तक उसके ऊपर आप वर्क नहीं करेंगे देन प्लान क्या हो जाएगा आपका? इनइफेक्टिव हो जाएगा. तो जो सिक्स्थ स्टेप है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान कि वट एवर यू डिसाइड, वट एवर यू सेलेक्ट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना, दैट इज़ द सिक्स्थ स्टेप. एंड लास्ट स्टेप इज़ फॉलो अप एक्शन. Monitoring the plan constantly and taking feedback at regular interval is called follow-up. Follow-up का मतलब टाइम टू टाइम चेक करना कि whether the work is done as per plan or not. Follow-up लेना एम्प्लॉय से हर इंटरवल पे so that we can come to know कि work is going on as per plan. Monitoring of plan is very important to ensure that the plans are being implemented according to the schedule. और जब मॉनिटर करते हैं प्लान को तो हम ये चेक करते रहते हैं कि प्लान इम्प्लीमेंट हो रहा है as per the schedule.
And regular check and comparison of the result with the set standard are done to ensure that objectives are achieved. और जब हम रेगुलर चेक करते हैं तो हम ये कंपेयर कर लेते हैं कि हमारा एक्शन एज पर प्लान हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो बेटा देयर आर 7 स्टेप्स ऑन प्लानिंग प्रोसेस. और फर्स्ट स्टेप विल बी फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप विल बी लास्ट स्टेप. वॉट एवर इज ऑन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, वो सारे सीक्वेंस में स्टेप आते हैं. यू कैन नॉट ऑल्टर द स्टेप कि सेकंड को थर्ड कर दिया या थर्ड को सेकंड कर दिया. Is it clear? The steps involved in planning process will be written in sequence only. I hope you all understand limitations and planning process I have completed. Next topic I will complete in my next lecture. Thank you beta. Have a nice day.